العابدین صاحب رشادی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ اپنی زندگی کے بڑے بے باک عالم دین تھے. ہر فیلڈ میں جہاں کہیں بھی کام کرنا ہو پیش رہ کر کام کیا کرتے تھے. خصوصیت کے ساتھ آپ حجاج اکرام کی تربیت میں بہت زبردست حصہ لیتے. 30 پر 8 سال کے عرصے سے مسلسل حاجیوں کی خدمت انجام دیتے آ رہے تھے اور آخری وقت تک بھی ماشاء اللہ جب کبھی بھی طبیعت میں افاقہ ہوتا تو فوراً حج کیمپ پہنچتے اور حج کمیٹی کے موجودہ ممبر بھی ہیں اور ساتھ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے آپ محتمم بھی ہیں اور شیخ الحدیث ہیں اور اسی طرح یہاں کے جو مدارس ہیں ان مدارس کا ایک وفاق ہے اس کے صدر بھی ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنی پوری زندگی علم میں لوگوں کی خدمت کرنے میں اور اسی طرح تمام لوگوں کے درمیان میں اتفاق پیدا کرنے میں پیش رہے. اور جب کبھی بھی کسی بات کا مشورہ ہوتا تو ماشاء اللہ مجھ سے بھی رجوع ہوتے اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا سعید صاحب برابر مسلسل میرے رابطے میں رہتے اور آپ ذکر کرتے. 2 دن قبل بھی جب بہت زیادہ طبیعت بگڑ گئی مولانا کا فون آیا حضرت بھی یاد کر رہے ہیں اور طبیعت بھی بہت زیادہ ناساز ہے, ذرا شفا ہاسپٹل آپ آئیں گے تو اچھا ہوگا. مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ کئی دنوں سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو پھر مولانا جیسے ہی کہا تو فوراً میں ہاسپٹل پہنچا, حضرت سے بات بھی کیا, حضرت کی عیادت بھی کیا اور جو کچھ پڑھ کر ہم حضرت کی شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے ان دعاؤں کو بھی ہم نے مانگا. لیکن موت یہ مقرر ہے, کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا. ہر ایک کو موت ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے. بس اللہ کرے کہ اللہ اس زندگی میں کچھ ایسا کام لے لے جو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے اور اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے. واقعتاً حضرت قوم کی, ملک کی, ملت کی خدمت کرنے میں پیش رہے. اللہ آپ کی ان خدمات کو قبول فرما کر آپ کی مغفرت کے فیصلے فرمائے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے وارث اور وارثین جتنے بھی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور خاص طور پر ہمارے حضرت کی اہلیہ محترمہ کو بھی اور دختران کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. رات کے 10 بجے یہاں عیدگاہ جدید میں ادا کی جائے گی اور ٹینری روڈ جو مدرسے کا جو قبرستان ہے تو اس قبرستان میں انشاءاللہ تدفین عمل میں آئے گی. جنازہ وہاں ہوگا اور مدرسے کا جو قبرستان ہے تو ہم اس کو ٹینری روڈ کا قبرستان کہتے ہیں. تو ایک اور بھی قبرستان ہے تو اس وجہ سے تو یہاں انشاءاللہ تدفین عمل میں آئے گی. اس وقت ہمارے علاقے کے MLA AC سینواسن صاحب اور جتنے بھی آپ کے حواریین ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں چونکہ AC سینواسن صاحب کا بھی بڑا گہرا ربط تھا حضرت کے ساتھ اور بڑی محبت سے پیش آتے تھے اور جب کبھی بھی کسی بھی چیز میں یہاں کی ضرورت ہوتی تو فوراً دوڑے آتے اور عید کی نماز میں بھی آپ شریک رہے اور عید کی نماز بھی ادا کیا حضرت کے ساتھ اور یہاں کی پروگراموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اس وقت تعزیت کے لیے بھی اور یہاں حضرت سے ملاقات کے لیے بھی تشریف لائے اور حضرت کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے. یہاں سب کا آنا اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنا. حضرت مولانا ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಜೈನುಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸೇವೆ ನಮ್ಮ 38 ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು MLA ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದರು. ದಿನವೂ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ನೆನ್ನೆನೂ ಸಹ ಗುರುಗಳು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರೋಗಿರೋದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. और आज हम सब उनको अलविदा कहने के लिए यहाँ आए हैं. बहुत लंबे अरसे तक हम सब पर उनका असर रहा, उनके खिदमत रहे इस कौम के साथ. तकरीबन 32 साल
मदरसा शाह वलीउल्लाह और उसकी बुनियाद रखकर उसको इस मेयार तक पहुंचाने में उनकी कड़ी मेहनतों का और उनकी काविशों का जो नतीजा है और उसके साथ साथ हुज्जाज कराम की जो खिदमत उन्होंने की है, ये सब हमारे सामने आने वाली नस्लों के लिए बड़ी सीख है कि जो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए दी हैं, जिस तरीक़े से मुनज़्ज़म तरीक़े से जो उन्होंने किया है, ये सब हमें देखकर सीखना है और आगे इस काम को बढ़ाना है। हम सब ने एक बड़े बुज़ुर्ग को आज खोया है। हम दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत की है, इस कौम की खिदमत की है, उसके एवज़ में उन्हें इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनके लिए काम दे और उनके अहले ख़ानदान सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन आप कोई शोर शराबा न करें, आज इत्मीनान से आए। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब जो इस दौर के वली थे और मदरसे शाह वलीउल्लाह में 80 पर 2 से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की खिदमत रही और मौलाना ने उम्मत के खैर के कामों में मौलाना आगे चल के हिस्सा लेते थे और आज हमारे लिए एक बहुत गम का दिन है, क्योंकि हमारे हज कमेटी में भी मौलाना हाजियों के लिए जब से कर्नाटक से हाजियों का सिलसिला रवाना शुरू हुआ तब से अब तक भी इस हज तक भी मौलाना की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी, डायलिसिस होने के बावजूद भी हाजियों की एक दिन भी मौलाना छुट्टी नहीं ली। तो एक अजीब गैबी अल्लाह भी इनको ताकत देता था। हम ना तो भी बहुत ही अफसोस भी है, गम है। आज उम्मत के अंदर एक बहुत बड़े दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वली को ले लिया। अभी उर्फ मौलाना के बारे में कितना बोले तो भी कम है। अल्लाह इनको आला से आला जन्नत में मुकाम अता फरमाए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए और ज़रूर बनाएगा, क्योंकि जो हाजियों की खिदमत करते हैं मौलाना बेलोज जो खिदमत करते थे, पूरी कर्नाटक का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौलाना की खिदमत को सराहते थे लोग। और जितने भी हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के उलमा इकराम मौलाना का नाम जहीं कहीं भी लो, अरफात के मैदान में इस बार मैं देखा मौलाना के लिए बहुत सारे हाजियां दुआ के, मीना में, हरम के अंदर। तो मौलाना के साथ पूरे हुज्जाज इकराम की दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और ये हमारे हज कमेटी के मेंबर भी थे, हमारे साथ मुजाहिद भाई, हमारे वासिल भाई, हमारे पूर्वों के साथ कैसा रहते थे कि एक बड़े भाई जैसे हमारे साथ। तो आज बहुत गम का दिन है हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको आला से आला दर्जा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मौलाना का जाना उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान है और ख़ास करके हमारी हज कमेटी का बहुत ही मैं इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी खिदमत जो हाजियों के लिए थी वो किसी से वो भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे मेंबरों के साथ जितने वॉलंटियर्स थे कौम को तो उनका फ़ायदा पहुंचा ही रहे थे, लेकिन जिन लोगों जो हमारे हाजियों को जो खिदमत करने के लिए आते थे उन लोगों के साथ एक बड़े भाई, एक दोस्त बनकर काम करते थे। और इनके साथ जो काम करने का जो लुत्फ़ मैं इस साल जो मुझे मिला मैं उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि बहुत आज हमारे चेयरमैन साहब हज को जाने के बाद
मेरा उनका बहुत नज़दीक का ये हो गया था। आप लोगों को भी मालूम है, अल्लाह का करम है, मौलाना की बहुत खिदमत है हाजियों के लिए। और यहाँ भी, और इससे पहले जो सेहत उनकी रहती थी तो हज में भी जाके उन्होंने खिदमत करते थे। तो उस हिसाब से इनके शागिर्द भी पूरे दुनिया के कोने कोने में हैं। जब इन्होंने इधर मदरसा कायम किया उस टाइम पर इधर बहुत जहालत थी, उस टाइम पर उनका इधर बुनियाद रखे, तो वहाँ से इनका सिलसिला चल रहा था। तो अल्लाह का करम है, आज जितने भी उलमा इकराम इधर जुड़े हैं, जो शागिर्द हैं और जो हमारे जैसे उनको चाहने वाले हैं, ये सब उनकी मोहब्बत में आकर है। तो इसकी एक गवाही है मौलाना का किस तरीके का काम था बोलकर। मैं उम्मीद करता हूँ मौलाना को अल्लाह जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाएगा। हमारे टिप्पू भाई बोलने जैसा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में अल्लाह उनको मौका अता फरमाएगा। और उसी के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि मौलाना को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बग़ैर हिसाब किताब के वो जन्नत में दाखिला करेंगे। और जो भी उम्मत का और जो हमारी कौम का जो नुकसान हुआ है, अल्लाह उसको भरपाई किस तरीके से करता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके फर्जंद भी हैं सईद भाई, अल्लाह उनको भी सब्र जमील अता फरमाए। हमारी निगरानी और हमारी नज़र में जो खिदमत सईद भाई ने किए हैं जो मौलाना की, शायद ही एक वालिद की खिदमत दूसरे बच्चे कर सके। ताकि एक वो मिसाल है, हमने भी बहुत सारी जगह हमने देखा है, ये एक मिनट के लिए भी उन्होंने उनकी नज़र आजू बाजू नहीं किया। जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर थे मौलाना, जो जिस तरीके से उन्होंने खिदमत किए हैं उसके हम लोग गवाह हैं। अल्लाह उनको भी उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। फिर से एक बार मैं मौलाना के हक़ में यही दुआ करता हूँ और हमारी हज कमेटी की पूरी तरफ से मैं ये दुआ करता हूँ कि मौलाना को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बग़ैर हिसाब किताब में उनको अल्लाह दाखिला अता फरमाए जन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े नहायत रंज और अफसोस की बात है कि शहर के एक मशहूर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे याद है कि पहले हज कैंप 96 में 96 में जब हमने शुरू की, उस वक्त से मेरे साथ जुड़े थे और जो हुजाज इकराम को तलबिया पढ़ाकर रुखसत करते थे और थोड़ा सा मुस्कुरा दो, रियासत कर्नाटक के कोने कोने में थोड़ा सा मुस्कुरा दो के नाम से मशहूर हो गए थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत मक़बूल फरमाए। हाजियों की ट्रेनिंग, हाजियों के खिदमत मौलाना ने बहुत की है और उसके अलावा भी समाजी कारकुन रहे, समाज की खिदमत करते रहे। मैं और मेरे फर्जंद रुमान बेग, हम सबको हम बराबर शरीक हैं उनके मेम्बरान फैमिली, उनके तमाम बरदरान मिल्लत के साथ हम उनके साथ मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है पयाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले।
को है, दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है। अब है किस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको नहला के पहना दिए हैं कफन, रो चुके मिल के माँ बाप भाई बहन। मुझको नहला के पहना दिए हैं कफन, रो चुके मिल के माँ बाप भाई बहन। मौत भी दोस्तों आज हैरत में है, मौत भी दोस्तों आज हैरत में है। अब है किस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। खुशबुओं में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। खुशबुओं में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा। हो चुका